morning. Everybody fine? Okay. Yes, ma'am. Right. Okay. So let me share the screen. Okay. So yesterday we did till the cost accountancy. Okay. Now the important topic with reference to cost accounting as well as our examination is the difference between financial accounting and cost accounting. Okay. So we know what are the limitations of the financial accounting. So those limitations only become the differentiating factor between the cost accounting and financial accounting. Okay. So on the basis of that only, we will determine the difference. Okay. So, but they are also related to each other. Difference doesn't mean that they are unrelated. They are related to each other because cost accounting is the next step to financial accounting. So basis is the financial accounting only. It is possible that the information has been derived from the financial accounting for cost accounting, but it goes beyond that financial accounting data. Okay. So अब देखो रिलेशन क्या है. They are both concerned with the systematic recording and presentation of the financial data. है ना. जो भी फाइनेंस से रिलेटेड डेटा है वो रिकॉर्डिंग दोनों एक जैसे ही करते हैं. They both systems rest on the same principles concerning debit and credit and have the same source of recording the transaction. The only difference is even though they have the same principles, same debit credit rules, but cost accounting is giving you more detailed information. क्योंकि उसका पर्पस हमें पता है. फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बेसिक पर्पस एनालिसिस नहीं है, उसका बेसिक पर्पस है रिपोर्टिंग. ओके. तो फर्स्ट इज द पर्पस पॉइंट दैट व्हाट इज द पर्पस ऑफ बोथ. दोनों में डिफरेंस है जो कि अभी अभी हमने डिस्कस किया. Main purpose of financial accounting is to prepare profit and loss account, balance sheet for the reporting to owners and stakeholders, outside agencies, external users. कौन होते हैं external users? Shareholders हैं. They are not internal, they are external. They are just providing the capital. Government, tax agencies, society. Okay. So who is looking at your financial statements? All these external users are looking at your financial statements. Okay, to know your performance, your status. But cost accounting is to provide the detailed cost information to management. Management is internal. ठीक है, क्योंकि काम तो वही कर रहे हैं ना, कंपनी तो वही चला रहे हैं. तो मैनेजमेंट जो है उसके लिए जो डेटा कलेक्शन होता है, जो प्रेजेंटेशन होता है, जो डिसीजन मेकिंग होता है, वो मैनेजमेंट के लिए होता है. दैट इज इंटरनल. तो पर्पस दोनों का डिफरेंस हो गया. Relating to same transaction, financial is reporting purpose, costing is providing detailed information to internal users. Then statutory requirements. Financial statements are prepared according to the legal requirements of Companies Act. है ना. ये तो हमें पता है, शेड्यूल 6 में दिया हुआ है. कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग हमें प्रिपेयर करने होते हैं. जबकि मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स इज वॉलंटरी एक्सेप्ट इन सर्टेन इंडस्ट्रीज वेयर इट हैव बीन मेड स्टैट्यूटरी और ऑब्लिगेटरी. कुछ कंपनीज कुछ कंडीशंस में. देन एनालिसिस ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट. फाइनेंशियल अकाउंट्स रिवील द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस. हाँ जी Ma'am, can you please repeat statutory requirement? Statutory requirement is why do you prepare profit and loss account and balance sheet and cash flow statement? How do you prepare and why do you prepare? कंपनी में आपको statutory requirement है ना कि आपको ये बनाने ही बनाने हैं 3 statements. है ना. जो भी कोई टैक्स देता है उसके लिए ये मैंडेटरी होता है कि आपको ये फॉर्मेट में ये स्टेटमेंट्स बनाने हैं.
लीगल रिक्वायरमेंट है। कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए कोई भी स्टेटमेंट लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, वॉलेंट्री है। आप करना चाहो कॉस्ट अकाउंटिंग करो, नहीं करना चाहते मत करो, एक्सेप्ट फ्यू थिंग्स जहां पे स्टैट्यूटरी है। ठीक है, ओके, समझ Yes, आ ma'am. गया कि नहीं? आ गया ना? ओके, अच्छा, उसके बाद एनालिसिस ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट में मैं ये बता रही थी कि फाइनेंशियल अकाउंट्स जो हैं वो सिर्फ रिपोर्टिंग पर्पसेस के लिए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताते हैं आपको, और आपको बैलेंस शीट में ये बताते हैं कि भैया ये पोजीशन है आपकी, लेकिन वो भी ओवरऑल कंपनी के लिए बताते हैं, उसके पर्टिकुलर सेक्शंस के लिए नहीं बताते हैं। जैसे मान लो मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी में 6 डिपार्टमेंट है, तो मैं जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाऊंगी तो मैं पूरी कंपनी एज ए होल के लिए आपको रिपोर्ट कर दूंगी कि देखो जी मेरी कंपनी का ये परफॉर्मेंस है। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग आपको हर डिपार्टमेंट के बारे में बताएगा कि कौन सा डिपार्टमेंट कितनी कॉस्टिंग कर रहा है, कितना रेवेन्यू अर्न करके दे रहा है आपको। ये आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं बताएगा। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंट शो द डिटेल्ड कॉस्ट एंड प्रॉफिट डेटा फॉर ईच प्रोडक्ट लाइन, डिपार्टमेंट, जितने भी सेक्शंस है उनके पास वो सारा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कॉस्ट अकाउंटिंग बताएगा। क्योंकि क्यों बताएगा? क्योंकि बेसिक प्रीमिसेस क्या है हमारा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है आउटसाइडर्स के लिए, ठीक है, और कॉस्ट अकाउंटिंग है इंटरनल यूजर्स के लिए। ठीक है, जैसे आप इसको इस तरह से समझो कि मेरे घर में क्या हो रहा है ये मुझे और मेरे फैमिली मेंबर्स को पता है। लड़ाई झगड़ा हो रहा है, प्यार हो रहा है, प्रेम प्यार से बात हो रही है, या एकदम से झगड़ा हो रहा है, किसी की क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये हमें एज ए फैमिली पता है। ठीक है, तो हम कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे हैं, डिटेलिंग कर रहे हैं, लेकिन जो पड़ोसी है उसको क्या पता है? उसको ये पता है कि भैया ये फैमिली है और सब अच्छे से हंसी खुशी रहते हैं, उनको प्रॉब्लम्स तो नहीं पता ना। ठीक है, तो एज एन आउटसाइडर वी आर अ फैमिली, लेकिन जब हम एक फैमिली होके अपने घर में बात करते हैं वी आर इंडिविजुअल्स ऑल्सो। ठीक है, तो है तो बड़ा लेम सा एग्जाम्पल, स्टिल you can differentiate between these two according to this example. Okay, then comes the periodicity of reporting. Periodicity means when you have to prepare the reports or financial statements. फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको वो एनुअली होता है जनरली, है ना, एनुअल अकाउंट्स बनाते हैं, एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बाकी दोनों। कॉस्ट अकाउंटिंग में ऐसा कुछ नहीं है, पीरियड जितना मर्जी लो आप, जितना जैसे भी आपको चाहिए रिपोर्टिंग होगी, चाहे आप एनुअली रिपोर्टिंग कराओ, 6 मंथली कराओ, क्वार्टरली, मंथली, डेली, 15 डेज में कराओ, वीकली कराओ, कैसे भी करवाओ। So statement will be prepared according to that. So periodicity की कोई limitation नहीं है. Then control aspect. Financial accounting lays emphasis on the recording of financial transactions and does not attach any importance to the control aspect. ठीक है, ये तो अभी मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डिटेलिंग नहीं होती है. सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज जस्ट फॉर रिपोर्टिंग पर्पस. Cost accounting is not for the reporting purpose. The basic purpose is to control. क्योंकि आप उसमें detailed system of controls use करते हो, तो उसकी various techniques हैं. तो basic जो idea है cost accounting का है वो है control of cost. Then next point is historical and predetermined cost. ये हमने limitations में देखा था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है दैट इज एक्सक्लूसिवली डीलिंग विद हिस्टोरिकल कॉस्ट. जो इवेंट, जो ट्रांजैक्शन हो चुकी है वो रिकॉर्ड की जाती है. The historical nature of financial accounting can be easily understood in the context of the purpose for which it was designed. ठीक है, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग जो है इट नॉट ओनली यूजेस द फाइनेंशियल historical cost but also the determine the predetermined cost. कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करती है? हिस्टोरिकल कॉस्ट को एनालाइज करती है और उसके बेसिस पे प्रीडिटरमिन्ड फ्यूचर कॉस्ट डिटरमिन करती है. ठीक है ना, सो इट डज नॉट एंड विद द हिस्टोरिकल कॉस्ट. इसीलिए करते भी हैं
कॉस्ट अकाउंटिंग, वरना क्या फायदा? जो काम अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रही है वही काम अगर कॉस्ट अकाउंटिंग करेगी तो क्यों करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग हम? सो नेक्स्ट इज फॉर्मेट ऑफ प्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन। अब देखो, कंपनीज एक्ट जो है या जो भी एक्ट है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग को किस तरह से प्रेजेंट करना है ये उसमें डिफाइंड होता है, ठीक है। इट हैज अ सिंगल यूनिफॉर्म फॉर्मेट ऑफ प्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन। आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बननी है, बैलेंस शीट कैसे बननी है, ये प्री डिफाइंड है। बट कॉस्ट अकाउंटिंग में आप जैसा फॉर्मेट चाहते हो वैसे बनेगा, उसमें कोई प्री डिफाइंड फॉर्मेट नहीं है। जैसा फॉर्मेट कन्वीनियंट है, जैसा फॉर्मेट आपको समझ में आता है वैसा ही फॉर्मेट बन जाता है, ठीक है। सो इट हैज वेरियड फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंटिंग द कॉस्ट इंफॉर्मेशन which are tailored to meet the needs of management and thus lacks a uniform format. मान लो कंपनी ए में मैनेजमेंट कहती है भाई मुझे तो जो है हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे तो इस तरह से चाहिए। कंपनी बी की मैनेजमेंट कह रही है नहीं मुझे तो वर्टिकल फॉर्म में चाहिए, तो बना लो। बट दिस कैन नॉट हैपन विद द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड। Financial accounting records only external transactions, sales, purchases, receipts, ये सब जो कि आउटसाइड पार्टी से हुई हैं वो ट्रांजैक्शंस। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स नॉट ओनली एक्सटर्नल बट आल्सो इंटरनल और इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांजैक्शंस, ठीक है। जैसे एक ट्रांजैक्शन हम ले कि रॉ मटेरियल खरीदा गया, ठीक है, ये फाइनेंशियल भी है, कॉस्टिंग इंफॉर्मेशन भी है। उसके बाद प्रोडक्ट बेचा गया, ये भी दोनों का पार्ट हो गया। लेकिन जब ये रॉ मटेरियल खरीद के स्टोर में आया और स्टोर के बाद वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में गया, ये इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट की है। दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है, क्योंकि वो इंटरनल थी। उसके बाद टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड। क्या क्या स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं ये भी आपको पता है। उसमें तो 3 ही मेन है जो कि आप शो करते हो पब्लिक को, P&L, कैश फ्लो, बैलेंस शीट, ठीक है। तो दैट अच्छा होता क्या है कि ये जो जनरल इंफॉर्मेशन, जनरल पर्पस स्टेटमेंट्स है, इसको कोई भी देख सकता है। आपकी अगर एनुअल रिपोर्ट किसी के हाथ में है, वो कंज्यूमर भी हो सकता है, वो कस्टमर भी हो सकता है आपका, वो जो है आपका लोन जिसने लेंडर भी हो सकता है, सोसाइटी का कोई जनरल मेंबर भी हो सकता है, जो कि सबके जनरल पर्पस को सर्व कर देता है। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में जो स्टेटमेंट प्रिपेयर होती हैं वो स्पेशल पर्पस होती हैं, वो एक पर्टिकुलर पर्पस सर्व करती हैं। मान लो अगर मुझे लॉस ऑफ मटेरियल की रिपोर्ट चाहिए तो वो स्पेशल पर्पस है। वो रिपोर्ट, लॉस ऑफ मटेरियल की रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ एक मैनेजमेंट या प्रोडक्शन मैनेजर मैनेजमेंट के लिए बनेगी, वो जनरल पब्लिक के लिए नहीं बनेगी। तो वो स्पेशल पर्पस होती है, सिर्फ 1 या 2 पर्पस सर्व करती है, सबका पर्पस नहीं सर्व कर सकती वो, ठीक है जी। तो वो आगे हम देखेंगे, बहुत तरह की रिपोर्ट होंगी, ठीक है। आइडल टाइम रिपोर्ट, वेरिएंस रिपोर्ट्स, लॉस ऑफ मटेरियल रिपोर्ट, ये वो बहुत सारी, ठीक है। सो बेसिक पर्पस हमारा क्या है कि हम ये जानना चाहते हैं कि फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है। तो these 9 points will show you the difference between these two types of accounting. Why? Because the purpose, basic objective of these two is different, though they are being sourced from the same place, ठीक है। ओके, तो अच्छा, मैं जो आपको बेसिकली बताना चाह रही थी कि अगर मैं एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करती हूं तो एक ही स्टेटमेंट होगी, लेकिन उनका फॉर्मेट डिफरेंट हो जाएगा और उनका पर्पस भी डिफरेंट हो जाएगा। देखो जैसे ये है, मान लो मैंने एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया मैंने एक कंपनी का,
ठीक है, तो इसमें मैं क्या लिखूंगी, सारे खर्चे टू मटेरियल्स, मान लो 75,000 की कॉस्ट आई मटेरियल की, टू वेजेस 20,000, अदर एक्सपेंसेस 25,000, ठीक है, टू प्रॉफिट। ये आपकी बैलेंसिंग फिगर होगी, क्योंकि बाय सेल्स जो है 1,50,000 है, 1,50,000 और 1,50,000, तो मेरे जो प्रॉफिट आया वो आया 30,000। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख गया। ठीक है, आपने एनुअल रिपोर्ट में ये बता दिया। बस इससे ज्यादा क्या जानने की जरूरत है किसी को? मेरे साल भर की एक्टिविटी है ये मैंने आपको बता दी। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है ये हो गई आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब ये जो प्रॉफिट आया है ये मेरी पूरी कंपनी का आया है, लेकिन जब मैं कॉस्ट अकाउंटिंग करूंगी तो मैं कहूंगी भैया ये कंपनी जो है 3 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है। अब ये तो आपने तीनों प्रोडक्ट्स की टोटल जो भी प्रॉफिट आया ये बता दिया, अब तीनों का अलग अलग बताओ। ये वाली इंफॉर्मेशन मैं आउटसाइडर को नहीं दूंगी। ठीक है, आउटसाइडर के लिए ये इंफॉर्मेशन काफी है। उसे ये पता होना चाहिए कि मेरी सेल कितनी है, खर्चे कितने हैं, और मैंने परफॉर्मेंस पॉजिटिव दी है टू व्हाट एक्सटेंट। कॉस्ट अकाउंटिंग कहेगी नहीं भैया तुम्हारे 3 प्रोडक्ट हैं, तीनों की अलग अलग बताओ, बता देते हैं, क्योंकि ये तो हमारे इंटरनल यूजर्स हैं। तो पर्टिकुलर्स टोटल प्रोडक्ट एक्स वाई जेड। ठीक है, अब आया जी मटेरियल, ये स्टेटमेंट बनेगी। अब ये देखो इसका फॉर्मेट ये है, इसका फॉर्मेट तो नहीं है, इसका फॉर्मेट हमने चेंज कर दिया क्योंकि ये फॉर्मेट डिफाइंड है, ये फॉर्मेट वॉलंटरी है। ठीक है, तो आपको देखो बहुत सारी चीजें मिलेंगी, स्टेप बाय स्टेप आपको पता चलेगा क्या डिफरेंस है। तो 75,000 75,000 में से 40,000 का मटेरियल एक्स को गया, 12,000 का वाई को गया और 23,000 का जेड को गया। लेबर या वेजेस, ठीक है, वेजेस का टोटल खर्चा 20,000 है जैसे कि मैंने ऊपर दिखाया है, लेकिन इसकी बाइफर्केशन है 10,000, 5,000 एंड 5,000। अदर एक्सपेंसेस का टोटल खर्चा मैंने ऊपर 25,000 दिखाया है जो कि सही है, और इसका जो बाइफर्केशन है वो है ये। ठीक है जी, अब देखो टोटल कॉस्ट यहाँ भी यही है 1,20,000, यहाँ भी वही है 1,20,000, इसमें तो कोई चेंज नहीं है। लेकिन ये टोटल कॉस्ट डिवाइडेड कैसे, 70,000, 20,000 एंड 30,000। ठीक है जी, और सेल्स कितनी है, टोटल सेल्स तो 1,50,000 है, बट इसका डिवीजन 96,000 है, 28,000 है और 26,000 है। लो जी, अब पता लगेगा हमें प्रॉफिट एंड लॉस। 30,000 का प्रॉफिट है, 26,000 का प्रॉफिट है, 30,000 तो ऊपर ही दिख रहा है, और ये 8,000 का है, और यहाँ लॉस है 4,000 का। तो आपके पास एक्चुअल प्रॉफिट तो 34,000 का आया था जो कि रिड्यूस हो गया इससे। यहाँ कहीं पता लग रहा है ये? यहाँ तो आपको पता ही नहीं है, यहाँ तो आपको 30,000 दिख रहा है इसका रिजल्ट, लेकिन ये तो पता ही नहीं चला कि 2 प्रोडक्ट इतना प्रॉफिट दे रहे हैं कि थर्ड का लॉस आपने एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, तो ये है डिफरेंस बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग में और ये है कॉस्ट अकाउंटिंग में। जितनी इंफॉर्मेशन आपको कॉस्ट अकाउंटिंग दे रही है उतनी इंफॉर्मेशन आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं देगी। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है इसीलिए आउटसाइडर्स के लिए है और ये इनसाइडर्स के लिए। ठीक है ना, अपनी फैमिली की सारी बातें थोड़ी पड़ोसियों को बताते हो कि बता देते हो। ऐसा कोई है जो अपनी सारी बातें बताता है? नहीं बताता ना, अपनी मम्मी को भी नहीं बताते सारी बातें तो। ओके, अब आ जाओ जी
मेन चीज पे, विच इज कॉस्ट। भाई कॉस्ट अकाउंटिंग तो कॉस्ट से ही होगी ना, तो अब ये कॉस्ट क्या भला है, व्हाट इज कॉस्ट। अब जो कॉस्ट है उसको हम एज सच एक डेफिनेट डेफिनेशन में नहीं बांध सकते हैं, बिकॉज इट इज अ वेरी वेरी वाइड टर्म, ओके। बट फिर भी इसको हम एक्सप्लेन कैसे करते हैं, देखो इसमें है कि कॉस्ट अकाउंटेंट्स, इकोनॉमिस्ट्स एंड अदर्स डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, because one complete description of cost to suit all the situations is not possible. तो हम जो है अपनी कॉस्ट की डेफिनेशन को कॉस्ट अकाउंटेंट तक ही लिमिट करेंगे। So according to Oxford Dictionary, cost means the price paid for something. And what is that something? Something is the cost of the value of resources which have been sacrificed. Okay, so cost is the amount of expenditure incurred or attributable to a given thing. ये भी incomplete है. So cost is the value of economic resources used as a result of producing or doing the things costed. जो चीज की कॉस्ट हमने निकाली है उसमें कितने वैल्यू का इकोनॉमिक रिसोर्स हमने यूज किया है, वो कॉस्ट हो गई। कॉस्ट इज अ मेजरमेंट इन मॉनेटरी टर्म्स। देखो इसका मतलब यह है कि अगर कोई चीज ऐसी यूज हुई है जिसको हम मॉनेटरी टर्म्स में नहीं काउंट कर सकते, वो नहीं आएगा। तो कॉस्ट इज अ मेजरमेंट इन मॉनेटरी टर्म्स of the amount of resources used for the purpose of production of goods or rendering of services. ये definition हमारे cost and works जो वो है ICWAI इंस्टीट्यूट ऑफ वर्क क्या कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया उनकी दी हुई है। सो ये थोड़ी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है। कॉस्ट इज अ मेजरमेंट इन मॉनेटरी टर्म्स of the amount of resources used for the purpose of production of goods or rendering of services. ठीक है जी, तो सर्विस की भी कॉस्ट ऐसे ही डिटरमिन की जाएगी। अच्छा, अब अगले सेशन में आपको दिख रहा है मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, ठीक है। अब जब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो इन द लेमैन अंडरस्टैंड्स या इन अ लेमैन लैंग्वेज we interchangeably use cost and expense and loss also. हालांकि थोड़ा डिफरेंशिएट कर लेते हैं, still expense and cost is used in the same terms. अब इनमें डिफरेंस होता है। As a cost accountant, one must differentiate these because even though they are interchangeably used, they are not same. Okay? तो कॉस्ट तो हमें पता चल गई क्या है। कॉस्ट तो कोई भी रिसोर्सेज जो हमने यूज किए कुछ प्रोड्यूस करने के लिए, कुछ पाने के लिए, वो हो गई। तो कॉस्ट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, एक्सपायर्ड कॉस्ट एंड अनएक्सपायर्ड कॉस्ट। तो एक्सपायर्ड कॉस्ट क्या होगी? एक्सपायर्ड कॉस्ट होगी कि आपके रिसोर्सेस यूज हो चुके, ठीक है, जो एक्सपेंडिचर करना था आपने वो कर लिया और उसका बेनिफिट आपने डिराइव कर लिया। ओके, अनएक्सपायर्ड कॉस्ट वो है कि आपने रिसोर्सेस सैक्रिफाइस कर दिए बट द बेनिफिट इज येट टू कम, इट हैज नॉट कम। सो एक्सपायर्ड इज टाइप ऑफ अ हिस्टोरिकल sacrifice of the assets and the benefit thereof. Unexpired is expenditure or sacrifice of resources has been done, but benefit is yet to come. Okay, so expired cost can further be divided into expense and loss. Okay, now it is not necessary that whatever resources you had sacrificed in the past you have got the benefit. Okay, you may not have got the benefit, but the benefit is not also yet to come. Okay, so if you take the expense as a term, then it is the expired cost resulting from the productive usage of the asset. Productive usage means
you have used it creatively and you have used the resources in a creative manner, in a positive manner, and the benefits have been used. The benefits have been taken. Okay. तो एसेट की जो भी रेवेन्यू अर्निंग पोटेंशियल है वो कंज्यूम हो गया इन द जनरेशन ऑफ रेवेन्यू, जबकि लॉस जो है, लॉस इज दैट पोर्शन ऑफ द एसेट विच हैज बीन सैक्रिफाइस्ड बट द बेनिफिट कुड नॉट बी रिसीव्ड. ओके, तो लॉस तो आपको पता है कि कोई एसेट डिस्ट्रॉय हो गया तो आपकी तो कॉस्ट लग गई ना, आपने तो पैसा खर्च दिया था लेकिन बेनिफिट तो नहीं मिला. तो उस तरह का जो यूज ऑफ एसेट हुआ वो लॉस है. अब क्योंकि ये हिस्टोरिकल हो चुका, ऑलरेडी इसका बेनिफिट सेक्रीफाइस हो चुके रिसोर्सेस, उसका बेनिफिट मिल चुका या नहीं मिल पाया और मिलेगा भी नहीं, वो लॉस हो गया. इन दोनों चीजों को वी कैन शो इन ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है. अब आ जाओ अनएक्सपायर्ड कॉस्ट. Unexpired costs are those costs where resources have been sacrificed, but benefit of those sacrifice is yet to come. ठीक है. जैसे आपने रेंट दे दिया अगले 6 महीने का, तो वो आपने रिसोर्सेज तो अपने सेक्रीफाइस कर दिए ना, लेकिन अभी वो टाइम आना बाकी है जब उसमें उस रेंट के बदले हम उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में रहेंगे या पोजेस करेंगे. ठीक है. तो क्योंकि अब अभी इसका बेनिफिट आना बाकी है, एक्सपायर नहीं हुआ है, तो इट बिकम्स द एसेट एंड इट विल बी शोन इन द बैलेंस शीट. ठीक है जी. सो लॉस की भी डेफिनेशन दी है, रिडक्शन इन फर्म्स इक्विटी अदर देन फ्रॉम विड्रॉल्स ऑफ कैपिटल फॉर विच नो कंपेंसेटिंग वैल्यू हैज बीन रिसीव्ड. ठीक है ना, तो वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ. ओके, सो इन तीनों टर्म्स का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. दैट कैन बी आस्क्ड इन द शॉर्ट नोट, और वैसे भी कहीं पे भी आपको ये डिफरेंस पूछा जा सकता है. ओके, जैसे आग लग गई तो लॉस वो हो गया, एक्सपेंस हो गया जहां पे आपने यूज कर लिया, और अनएक्सपायर्ड में अभी होना है. ओके, अब आ जाओ जी कॉस्ट सेंटर. नाउ कॉस्ट सेंटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट concept to go forward in the cost accounting. Okay, cost center होता क्या है? Cost center is the small portion of the whole organization which has been divided into small parts or section. तो एक पर्टिकुलर सेक्शन को आप कॉस्ट सेंटर कहोगे. जैसे अगर मैं अपनी कंपनी को डिवाइड कर देती हूँ, भाई ए कंपनी है, ए कंपनी के अंदर 4 डिपार्टमेंट है, तो मैंने उसको डिवाइड कर दिया 4 भागों में. फिर मैंने कहा मेरे एक डिपार्टमेंट में 4 सेक्शन काम करते हैं, मैंने उसको 4 सेक्शन में डिवाइड कर दिया. तो ए कंपनी इज 1 यूनिट divided into 4 departments, further divided into 4 sections, and further may be divided into, let's say, 4 divisions. And cost center may be many things. जैसे एक पर्टिकुलर मशीन को मैं कॉस्ट सेंटर मान लूं, पर्टिकुलर पर्सन को कॉस्ट सेंटर मान लूं, एक लोकेशन को कॉस्ट सेंटर मान लूं, मैं किसी भी चीज को कॉस्ट सेंटर मान सकती हूँ, provided that cost center is to accumulate and ascertain the cost. ठीक है. तो for the purpose of ascertaining the cost, the whole organization is divided into small parts or section, and each small section can be treated as cost center for which the cost is ascertained. So cost center can be a location, a person, or an item of equipment or group of these. ठीक है. 3 चीजें उसने बोली हैं. लोकेशन भी हो सकती है, पर्सन भी हो सकता है, इक्विपमेंट भी हो सकता है, और इन तीनों में से कैसा भी कॉम्बिनेशन हो सकता है. 2 पर्सन्स का हो जाए, 2 मशीन्स का हो जाए, 2 लोकेशंस का हो जाए, एक पर्सन एक लोकेशन, एक पर्सन एक इक्विपमेंट लोकेशन, कुछ भी, any kind of combination.
for which cost may be ascertained and used for the purpose of control. Okay, so it refers to a section of business to which cost can be charged. ठीक है, जैसे it can be a location, एक सेल्स एरिया में, एन आइटम ऑफ इक्विपमेंट जैसे डिलीवरी वैन हो गई, मशीन हो गई, पर्सन सेल्समैन, ठीक है, मशीन ऑपरेटर, कुछ भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ दीज, दो ऑटोमेटिक मशीन्स ऑपरेटेड बाय अ वर्कमैन, तो ये भी एक कॉस्ट सेंटर हो सकता है. नाउ कॉस्ट सेंटर कैन बी ऑफ टू टाइप्स, पर्सनल कॉस्ट सेंटर एंड इम्पर्सनल. अब जैसे ऊपर ही हम बात कर रहे थे, लोकेशन इम्पर्सनल है, ठीक है, इक्विपमेंट इम्पर्सनल है, लेकिन एक पर्सन तो पर्सनल हो गया ना. तो पर्सनल कॉस्ट सेंटर कंसिस्ट ऑफ अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्संस. इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर कंसिस्ट ऑफ लोकेशन और आइटम ऑफ इक्विपमेंट और ग्रुप ऑफ दीज. इनको फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं इम्पर्सनल को प्रोडक्शन और सर्विस में. फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं इसको. प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर बेसिकली प्रोड्यूसेस द गुड्स फॉर सेल. ओके, दीज आर दीज cost centers where actual production work takes place. जैसे कि अगर हम ये कहें टेक्सटाइल मिल है, उसमें जो वीविंग डिपार्टमेंट है वो एक प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर है. ठीक है, अच्छा. सर्विस कॉस्ट सेंटर क्या होता है? दे आर दोज कॉस्ट सेंटर विच आर एंसिलरी टू और प्रोवाइड द सर्विसेज टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, बिकॉज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कैन नॉट वर्क इन आइसोलेशन. भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लोग भी काम कर रहे हैं, है ना, मशीनें भी चल रही हैं, तो मशीनों को चलाने के लिए पावर हाउस चाहिए, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का पार्ट नहीं है. दैट इज द इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर विच इज प्रोवाइडिंग द सर्विस. तो सर्विस हो गया, वो सर्विस डिपार्टमेंट हो गया. कैंटीन है, कैंटीन मील प्रोवाइड कर रही है जो उन लोगों को जो कि इस कंपनी में काम कर रहे हैं. ठीक है, सो इट इज प्रोवाइडिंग सर्विस टू द प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर. ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर. तो इसके बारे में हम कह सकते हैं कॉस्ट अकाउंटेंट सेट्स अप कॉस्ट सेंटर टू इनेबल हिम टू असर्टेन द कॉस्ट ही नीड्स टू नो. तो जो भी कॉस्ट जानना चाहता है उसके हिसाब से कॉस्ट सेंटर बना दिया जाता है. कॉस्ट सेंटर इज चार्ज विद ऑल द कॉस्ट दैट रिलेट टू इट. जैसे कॉस्ट सेंटर अगर मशीन है तो कॉस्ट ऑफ पावर, लाइट, डेप्रिसिएशन, रेंट, ये सब उसी से चार्ज किया जाएगा. ठीक है, सो द पर्पस ऑफ कॉस्ट सेंटर इज टू कंट्रोल द कॉस्ट एंड पर्सन इन चार्ज ऑफ अ कॉस्ट सेंटर इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल ऑफ दैट कॉस्ट. ठीक, तो आई थिंक कॉस्ट सेंटर इज क्लियर टू यू दैट इट इज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन to ascertain and control the cost. Okay. अब आ जाओ दी कॉस्ट यूनिट. अब कॉस्ट यूनिट क्या है? कॉस्ट सेंटर की जो भी कॉस्ट कलेक्ट होती है विद रेफरेंस टू कॉस्ट यूनिट होती है. ठीक है, अगर आपने मान लीजिए एक डिपार्टमेंट को कॉस्ट सेंटर बनाया है, तो उस डिपार्टमेंट में क्या प्रोड्यूस हो रहा है उसकी एक यूनिट जो है वो कॉस्ट यूनिट होगी. ठीक है, तो इट इज अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस इन रिलेशन टू विच कॉस्ट इज असर्टेन्ड. ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है तो 1 लीटर मिल्क या 1 टन मिल्क जो भी, वो एक कॉस्ट यूनिट हो गई. ठीक है, टेक्सटाइल मिल है तो 1 मीटर कपड़ा उसका यूनिट है, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन है. तो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन कैन बी टन ऑफ स्टील, मीटर ऑफ केबल. अच्छा, अगर ये कॉस्ट यूनिट प्रोडक्शन इंडस्ट्री में है तो सर्विस इंडस्ट्री में भी है. तो सर्विस इंडस्ट्री में जैसे मान लीजिए आपने किसी कंसल्टेंट से अपॉइंटमेंट लिया तो वो एवरी आवर के हिसाब से चार्ज करेगा, तो कंसल्टिंग आवर हो गया. पिक्चर देखने गए तो एक सीट की कॉस्ट यूनिट हो गई. पैसेंजर माइल्स हो गया, है ना, टैक्सी में बैठे तो पर किलोमीटर हो गया. ठीक है जी, तो ये है. तो डिफरेंट इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग डिफरेंट थिंग्स कैन हैव डिफरेंट यूनिट्स. ठीक है, अब आ जाओ जी कॉस्ट ऑब्जेक्ट. अब एक कॉस्ट सेंटर हो गया, एक कॉस्ट यूनिट हो गई और एक हो गया कॉस्ट ऑब्जेक्ट. तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट में बी डिफाइंड एज एनीथिंग फॉर विच अ सेपरेट मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट में बी डिजायर्ड. ओके,
So cost accountant may want to know the cost of a particular thing, and such a thing is known as cost object. And a cost object may be product, service, activity, कुछ भी हो सकती है. तो जैसे मैंने कहा कार इंडस्ट्री है, ठीक है, उसकी एक पर्टिकुलर सेक्शन को मैं कॉस्ट सेंटर बनाती हूँ, ठीक है. उसकी कॉस्ट यूनिट क्या है? एक कार, ठीक है. अब कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है? कॉस्ट ऑब्जेक्ट तो कार है, लेकिन उसकी यूनिट क्या है? वन कार, ठीक है. फर्क समझ में आया? मान लो पूरी जो एक डिपार्टमेंट मान लो मैंने बनाया एक कॉस्ट सेंटर, ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर. और कैसे समझाऊं आपको? जैसे हाँ, कार का ही एग्जांपल लेते हैं. एक डिपार्टमेंट है मोल्डिंग डिपार्टमेंट, ठीक है. मोल्डिंग डिपार्टमेंट में पूरी शीट आती है स्टील की, और उस स्टील को काट के आप कार की शेप देते हो उस स्टील को, ठीक है. तो वो एक कॉस्ट सेंटर हो गया. कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया? कार. और कॉस्ट यूनिट क्या हो गई? कॉस्ट यूनिट हो गई वन यूनिट ऑफ मोल्डिंग, ठीक है. वन यूनिट ऑफ मोल्डिंग ऑफ अ कार. ऑब्जेक्ट तो कार हो गया, कॉस्ट यूनिट हो गई वन मोल्डिंग, और कॉस्ट सेंटर हो गया मोल्डिंग डिपार्टमेंट, ठीक है. सो आई थिंक दिस इज क्लियर. अच्छा, तो जैसे कॉस्ट ऑब्जेक्ट अगर एक प्रोडक्ट है तो वो कार हो सकती है, कोई भी शेविंग, जैसे शेविंग रेजर है वो भी ले सकते हो. सर्विस हो गई टैक्सी सर्विस. प्रोसेस भी हो सकता है कॉस्ट ऑब्जेक्ट, जैसे वीविंग प्रोसेस इन दी टेक्सटाइल मिल. एक्टिविटी हो सकती है परचेजिंग रॉ मटेरियल. तो डिपेंडिंग अपॉन योर पर्पस. ओके, देन कम मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग. मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग दो तरह के होते हैं. In general, 99% of all the types of manufacturing can be divided into two types of costing, that is job and process. Okay, job costing को job order costing भी कहते हैं. Okay, and this method is applied where work is undertaken to customer special requirement. तो job order costing basically वहाँ यूज होती है जहाँ प्रोडक्शन टेलर मेड होती है, एज पर स्पेसिफिकेशन ऑफ कस्टमर्स होती है. जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई कैन से दैट यू आर गेटिंग योर सूट टेलर्ड, दैट इज जॉब कॉस्टिंग. क्योंकि आपने जो सूट सिलवाया उसमें आपको अपना साइज चाहिए, अपने मन का डिजाइन चाहिए, अपने हिसाब से आपको उसकी स्टिचिंग चाहिए, ठीक है. तो दैट इज अ जॉब कॉस्टिंग. और इसमें बड़ी जॉब छोटी जॉब हो सकती है, बट स्पेसिफिकेशन जो है वो बेसिकली इंपॉर्टेंट है. जॉब कॉस्टिंग का एक वेरिएंट है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और टर्मिनल कॉस्टिंग. इट इज बेसिकली द प्रिंसिपल्स ऑफ जॉब कॉस्टिंग आर अप्लाइड टू द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. सो वी कैन से कॉन्ट्रैक्ट इज अ बिग जॉब एंड अ जॉब इज अ स्मॉल ऑर्डर. जैसे मान लीजिए बिल्डिंग बनानी है, एक रोड बनानी है, या एक हाईवे बनाना है, या फ्लाईओवर बनाना है. दे आर बिग कॉन्ट्रैक्ट्स, दे आर बिग जॉब्स. इन फैक्ट वन शुड से कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज, बट प्रिंसिपल्स वही यूज होंगे, दैट इज अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन ऑफ कस्टमर. सिमिलरली बैच कॉस्टिंग भी वही है, बट बैच कॉस्टिंग इज द ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल प्रोडक्ट. जैसे आपने कोई चीज मैन्युफैक्चर करानी है अपनी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, तो उस पे प्रिंसिपल्स जॉब कॉस्टिंग के लगेंगे, लेकिन वो कहलाया जाएगा बैच कॉस्टिंग, ठीक है ना, क्योंकि वो मोर देन वन यूनिट है. प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है? प्रोसेस कॉस्टिंग इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द जॉब कॉस्टिंग एंड इट इज यूज्ड इन द मास प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग द स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट इन कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. जैसे इसके लिए मैं डिफरेंशिएट करके बताती हूँ. You got a suit stitched from your tailor and you got a suit from the mall, from the Reliance shop. ठीक है. अब क्या है, एक सूट आपने स्टिच कराया, वो जॉब कॉस्टिंग का पार्ट हो गया. एक आप रिलायंस की शॉप से या रेमंड की शॉप से, नॉट रिलायंस आई थिंक,
रेमंड की शॉप से आप एक अपने साइज का सूट खरीद के लाए, वो प्रोसेस कॉस्टिंग से आया है। ऐसा क्यों है? क्योंकि टेलर को आपने बताया था कि यहाँ बटन लगाना है, वहां बटन लगाना है, यहाँ पे ऐसे करना है, वहां पे वैसे करना है, तो वहां पे आपकी चॉइस थी कि कैसे बनना है। जबकि जब आप रेमंड की शॉप से सूट खरीद के लाए थे तो वो उनकी चॉइस थी कैसे बनना है, आपने उनकी चॉइस में से अपनी चॉइस चूज की है। ठीक है, तो वहां पे एक यूनिफॉर्मिटी है। आप अगर कहोगे मुझे 34 साइज का चाहिए तो वो भी वैसा ही होगा, 36 साइज वाला भी वैसा ही होगा, वही 2 बटन लगे होंगे, ठीक है, वही पूरी डिजाइनिंग सेम होगी, चाहे आप 34 ले लो, 36 ले लो, 40 ले लो, कोई भी साइज ले लो। ठीक है, बिकॉज दैट हैज बीन स्टिच्ड ड्यूरिंग अ प्रोसेस। मटेरियल खरीदा गया, फर्स्ट प्रोसेस, सेकंड प्रोसेस में उसकी कटिंग हुई, थर्ड प्रोसेस में उसकी स्टिचिंग हुई, ठीक है, फोर्थ प्रोसेस में उसकी बटनिंग हुई। तो और वो एक पीस की नहीं हुई थी, वो हजारों पीसेस की एक साथ हुई थी। ठीक है, तो दैट इज व्हाई जॉब एंड प्रोसेस कॉस्टिंग इज डिफरेंट। जॉब कॉस्टिंग में कॉस्ट सेंटर एक जॉब है, प्रोसेस कॉस्टिंग में कॉस्ट सेंटर एक प्रोसेस है। तो प्रोसेस कॉस्टिंग के और वेरिएंट्स हैं, जैसे ऑपरेशन कॉस्टिंग, वो रिफाइनमेंट ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग है। प्रोसेस, एक प्रोसेस को फर्दर डिवाइड किया जाता है, तो वो ऑपरेशन कॉस्टिंग हो जाती है। सिंगल आउटपुट एंड यूनिट कॉस्टिंग, ये भी एक यूनिफॉर्म प्रोडक्शन होती है। उसमें सिर्फ ये होता है कि यूनिट्स जो है 2-3 तरह की होती है, एक प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट उसमें लगता है, बट यूनिफॉर्म प्रोडक्शन होती है। एक होती है ऑपरेटिंग और सर्विस कॉस्टिंग। सो ऑपरेशन एंड ऑपरेटिंग आर डिफरेंट। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज फॉर द सर्विस इंडस्ट्री। ठीक, जैसे आपने बस में ट्रेवल किया, ट्रेन में ट्रेवल किया, एयरलाइंस में ट्रेवल किया, आपने इलेक्ट्रिसिटी कंपनी से इलेक्ट्रिसिटी ली, होटल्स, हॉस्पिटल्स, ये सब जो सर्विसेज हैं, दे आर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। और लास्ट जो है वो है आपकी मल्टीपल और कॉम्पोजिट कॉस्टिंग। देखो, सिंस दिस इज अ चेंजिंग वर्ल्ड, सो कोई भी प्रोडक्शन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर कंपार्टमेंट में रिस्ट्रिक्टेड है कि भैया ये तो जॉब ही है, भैया ये तो प्रोसेस ही है। ऐसा भी हो सकता है कि एक किसी चीज की प्रोडक्शन के टाइम पे वहां पे जॉब कॉस्टिंग भी लग रही है, प्रोसेस कॉस्टिंग भी लग रही है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग भी लग रही है, और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग भी लग रही है, ऑपरेशन भी लग रही है, ऑपरेटिंग भी लग रही है। सो जहां पे कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड्स होगा उसको हम कॉम्पोजिट कॉस्टिंग कह देंगे। ठीक, सो आई थिंक दिस इज ऑल फॉर टुडे। इससे ज्यादा आप एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अच्छा जी, मैं अब, हाँ जी राशि, यस मैम। बेटा अटेंडेंस हो गई?